So today we will study how to write a letter for placing order. Okay. As I had told you earlier, पहले बताए थे ना कि CBSE में formal class 10 you have formal letters. In class 10 you have formal letters. Formal मतलब क्या? Business letters, complaint letters, letters to editor. So these are the formal letters. So in formal letter you have letter to editor, complaint letter. हेलो म्यूट करो। ये बार बार ये दरबारी फैमिली के नाम से कौन ज्वाइन किया है? बार बार जो ना बेकार कैसा है हम कल जो काम कर रहे हैं। हेलो। So today we will study how to write a letter for placing order. You can hear me, all of you? I am audible? सुन सकते हो सब लोग? हेलो। Yes, ma'am. Yes, तो ये yes, ma'am. लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, फॉर्मल लेटर में एक one type of letter this how to write a letter for placing order. So in letter for placing order, in paragraph 1 you'll write the letter in 3 paragraphs. In paragraph 1 you will start the letter with what you have learnt about the company and its products. तो जैसे कि your company has a good reputation for supplying quality goods, मतलब कंपनी के बारे में कुछ लिखना है कि क्यों जो है इसी कंपनी से या इसी दुकान से तुमने डिसाइड किया है ऑर्डर पर लेने का. तो ये जो लेटर्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, इट इज यूजुअली रिटन फॉर बल्क ऑर्डर. कुछ थोक में सामान मंगाना है, इसी के लिए ये लिखा जाता है, letter for placing order. So in your first paragraph you will just write about the company, why you have decided to purchase things from that company. It has a good reputation, it supplies quality goods, so that is why. So you have to write what you have learnt about the company and its products. Then in paragraph 2 you have to draw a table. मतलब एक टेबल सा ड्रॉ करना है कि ड्रॉ अ टेबल एंड इंक्लूड ऑर्डर नंबर, आइटम नेम, आइटम क्वांटिटी, अदर स्पेसिफिकेशंस. तो दूसरे पैराग्राफ में जो है अब तुमको कौन कौन सा सामान चाहिए और कितने पीसेस में चाहिए, तो उसको एक टेबल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, उससे वो चीज नीट लगेगा. So in the second paragraph you will draw a table. Can you hear me, all of you? Hello. Yes, ma'am. So in the second Yes, ma'am. paragraph you will draw a table. In first column it will be order number 1 2 3 4. Then in the second column I will show you the sample, then it will be more clear. Example I will show you, it will be clear. So first you will draw a table, then in the second you will write the order number. पहला तो ऑर्डर नंबर मतलब वो सीरियल नंबर हुआ. दूसरे में आइटम नेम, मान लो कि स्पोर्ट्स आइटम मंगाना है तो वॉलीबॉल, बैट्स, विकेट्स, ग्लव्स. मान लो कि लाइब्रेरी के लिए मंगाना है तो डिक्शनरी. Number 2 mathematics book. Number 3 English reader, like that. Suppose you have to purchase the laboratory equipments. तुम साइंस लैब के इंचार्ज हो स्कूल के लिए, तो इतना बीकर, इतना फनल, इतना वो हीटिंग ग्लास, जो भी है आइटम्स, तो all that you have to mention in order. फिर कितना आइटम क्वांटिटी चाहिए, बीकर 4 pieces, funnel 6 pieces, like that. So in the second column you will to make it very neat you will just draw a table.
ऑर्डर नंबर या आइटम नंबर, फिर आइटम का नाम, और फिर कितना कितना कॉपीज या क्वांटिटीज में चाहिए. रेफर टू हाउ, व्हेन, वेयर यू वुड लाइक द डिलीवरी. अब डिलीवरी तुमको कहाँ चाहिए. काइंडली डिलीवर दीज गुड्स in the school campus before 10, between 10 a.m. to 4 p.m. स्कूल कैंपस यूजुअली इतना देर तक ही खुला रहता. स्कूल में डिलीवरी चाहिए, इतने से इतने बजे तक चाहिए. फिर तुमको अपने लेटर में ये भी मेंशन करना होगा कि गुड्स जो है वो अच्छे क्वांटिटी का होना चाहिए. So ensure that the goods are not defective and of good quality. And kindly arrange to send the goods in the school campus between 10 a.m. to 4 p.m. So you will write where you want the goods to be delivered, between which timing, and you will have to make a request to ensure that the goods are not defective. uh, and also you may place a condition. ये optional है, ऐसे लिख सकते हो कि if the goods are defective, uh, the the order may be cancelled and payment will not be made. हाँ? और and you will write that पेमेंट विल बी मेड. ये बहुत क्लियर लिखना है, क्योंकि दिस इज फॉर्मल लेटर. यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज. सब वर्बल से नहीं चलता है, रिटन होना चाहिए कि ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस है. तो तुमको ये भी लिखना होगा कि इफ द गुड्स आर नॉट ऑफ गुड, इफ द सप्लाई इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड एंड पेमेंट विल नॉट बी मेड. हाँ, कभी हो सकता है कि जो डिलीवरी ये हो वो बोले कि तुरंत पेमेंट कर दीजिए. तो ऐसा नहीं होता. तुम उसको बोलोगे कि नहीं, फर्स्ट विल वेरीफाई. You have to mention these terms and conditions because it is formal. You have to be very clear. So payment will be made only after the items are checked and verified. And if the items are found defective, the order will be cancelled and payment will not be made. You have to write your terms and conditions also. Kahan delivery. Hello, can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you will have to write where you want to the delivery, between which timing you want, and your terms and conditions, and close the letter with how you hope for the delivery. So you have in the closing lines you will be write, hope that you will deliver all the items on time, hoping to get. तो ये लिखना होगा. अब सैंपल देख लो कैसे लिखा हुआ है. ये देखो सैंपल 1. सबसे पहले तो ये लिखना है सेंडर्स एड्रेस. तो ये जो है गुड्स जो हम मंगाते हैं तो अपना पर्सनल के लिए नहीं मंगाते हैं. तो ये स्कूल के तरफ से जो है सामान मंगाना है. तो स्कूल का नाम लिखेंगे ब्लॉसम पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद, February 25, 2020. फिर रिसीवर्स एड्रेस, कहाँ से मंगाना है सामान. ये शर्मा एंड शर्मा ग्रुप है. जो भी दुकान का नाम है वो लिखना होगा, न्यू दिल्ली. ठीक है. सब्जेक्ट, अब ये सर और सब्जेक्ट का है कि पहले सर आ गया है और सब्जेक्ट, लेकिन इस फॉर्मेट में यही दिया हुआ है. तो सब्जेक्ट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स. डियर सर, इट इज माय प्लेजर. सो यू सी द you saw the format देख लिया. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेट है, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस. हाँ, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट, फिर डियर सर, फिर बॉडी ऑफ द लेटर. It is my pleasure to communicate to you that our school wishes to place an order for sports items in bulks with your company. So these items will be used in the activities room, gym, and sports ground of the school starting from the academic session of the year 2020.
2021. List of the items along with their quantity is given below. So इसमें कंपनी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तुम लिख सकते हो कि it's my pleasure to communicate to you that our school wishes to place order of in bulk with your company. तो अब यहाँ पर यहाँ सीरियल नंबर मिस हो गया है, लिख सकते हो 1 2 3 4 करके 1 below bat wicket keeping pads, batting pads 45, match ball red 60, match ball white. ये you can see how you have to make in tables कितना कौन कौन सा आइटम है और कितना पीस है ये ओके मैम हाँ बोलो कुछ पूछना है तो पूछ सकते मैम हाँ यस मैम हाँ मैम बॉडी कितने वर्ड्स का रहता है? ये 100 से 150 का ये रहता है, 3 पैराग्राफ में लिखना रहता है। पहला पैरा में तो तुमने लिख दिया ऑर्डर प्लेस करने का, ये दूसरा में वही कॉलम बना के, और तीसरा में काइंडली डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम बाय एंश्योरिंग दैट ऑल द आइटम्स आर टेकन फ्रॉम द फ्रेश लॉट। ये तुमने बता दिया उसको कि तुमको जो है अच्छा फ्रेश आइटम चाहिए, पुराना रद्दी माल नहीं चाहिए। हाँ, काइंडली डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरीज यू कैन आस्क। कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हेलो मैम हाँ बोलो। मैम कोई भी ऑब्जेक्ट मंगाने का कोई लिमिटेड नंबर है क्या, या फिर जितना मन उतना मंगा सकते हैं? जितना मन उतना मना, तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। एक या 2 पीस नहीं, ज्यादा बल्क में ही होता है, 5 10 इस तरह, क्योंकि स्कूल के लिए मंगाना है तो यूजुअली 1 2 मतलब मिनिमम 5 रखो। और प्रैक्टिस बॉल्स 150 है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेश लॉट, तुमको अच्छा सामान चाहिए, ये तुम यू विल बी वेरी क्लियर। पेमेंट ऑफ द एंटायर परचेज विल बी डन डिजिटली। हाँ, यू आर नॉट गोइंग टू मेक कैश पेमेंट। और ये इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये यूजुअली रहता है, इसमें जोड़ देना कि पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर द आइटम्स आर चेक्ड एंड वेरीफाइड। गुड्स आइटम्स व्हाटएवर इट इज, you can include that also. Looking forward to hearing from you and yours truly. ठीक है, समझ? मैम ये सैंपल भेज दीजिएगा प्लीज ग्रुप में। हाँ हाँ, सारा व्हाट्सएप में भेज देंगे, व्हाट्सएप स्नैप होमवर्क सब पे भेज देंगे। तो देख, फिर अब ये दूसरा सैंपल देखो। ये लाइब्रेरियन, द लाइब्रेरियन रिसीव, ये सेंडर्स एड्रेस, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस होता है। तो यहाँ सेंडर कौन है? लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन को स्कूल के लिए किताब चाहिए, तो नाम नहीं होगा यहाँ द लाइब्रेरियन, डीपीएस स्कूल मुंबई। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें फॉर्मेट में है कि डेट नीचे हो गया है, डेट को बीच में रखना। फिर ये द मैनेजर भवन बुक सेलर्स, ये हुआ एड्रेस ऑफ द रिसीवर। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन भी लिखना है, तुमने किसको एड्रेस किया? मैनेजर को। भवन बुक सेलर्स मुंबई, और डेट यहाँ 23rd February, dear sir, then subject, supply of books for the school library. What is the subject? Supply of books for the school library. Sir तो पहले ऊपर लिख दिया। We are pleased to inform you that our management has decided to place an order with you. We would like to place a bulk order to you for the supply of books to our school library. We would like to have at least a 20% discount on the purchase of books, apart from the additional 5%
डिस्काउंट ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं स्कूल के तरफ से तो कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। तो तुमने क्लियर कर दिया है कि जो है हमें डिस्काउंट चाहिए। जो एडवर्टीजमेंट जहाँ भी लोग देते हैं तो वहाँ देते हैं कि इतना % हम डिस्काउंट देंगे, तो यू रिमाइंड। यहाँ जो है वो वर्बल नहीं चलता, सब कुछ रिटन फॉर्म में होना चाहिए। बाद में अगर तुमको दुकान वाले ने पूरा चार्ज कर दिया और तुम सोच रहे हो कि 20%, तो लेटर में मेंशन होगा तो यू कैन, दैट इज अ प्रूफ फॉर यू कि मैंने बोला था कि मुझे ये डिस्काउंट चाहिए। 20% discount apart from the additional 5% discount granted to institutional buyers. Means you have made it very clear in your letter that you want 25% discount. 20% ऐसे हैं, और बल्क ऑर्डर में इंस्टीट्यूशन अगर खरीदता है स्कूल तो 5%। The following is the list of books with their particulars attached. अब इसमें देखो प्रॉपर टेबल है, इसमें सीरियल नंबर भी है। पहला फॉर्मेट में सीरियल नंबर नहीं था, 1 2 3 4, और फिर जो है लिस्ट ऑफ बुक्स, नेम ऑफ द बुक्स, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बुक्स, ऑथर्स, पब्लिशर्स नेम और नंबर ऑफ कॉपीज। इस तरह प्रॉपर टेबल ये करके बनाना है। सी द टेबल। 6 किताब चाहिए, सबका राइटर या पब्लिशर का नाम है और नंबर ऑफ कॉपीज है। ये देखो आइटम्स और नंबर ऑफ कॉपीज, ये तो एकदम एसेंशियल है, और ये सब भी ऐड कर सकते हो। सीरियल नंबर और नेम ऑफ द आइटम्स और नंबर ऑफ, ये दैट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। अब किसी को जो है अब पर्टिकुलर ब्रांड का ही कोई सामान चाहिए यही, तो वो उसको मेंशन कर सकता है एक और कॉलम बना के। We understand that the shipping of the above books will be mentioned in your website. We want the above books to reach we understand that the shipping of the above books will be free. अब तुमने उसको ये भी बता दिया है कि शिपिंग जो है वो फ्री होना चाहिए। बल्क ऑर्डर है तो शिपिंग फ्री है। As mentioned on your website, we want the above books to reach us in proper shape and order not later than, तुमने डेट भी मेंशन कर दिया कि इस डेट तक मुझे चाहिए और अच्छे कंडीशन में चाहिए। ये जो है हमेशा मेंशन करना है कि सामान जो भी है वो अच्छे कंडीशन में चाहिए और किस डेट तक चाहिए। If our terms and conditions are acceptable, yours sincerely, मोहन सिंह, लाइब्रेरियन। So, समझ आ गया कैसे लिखना है लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर? हेलो। यस मैम। Yes, ma'am. मैम यहाँ सिग्नेचर, सिग्नेचर, उसको योर्स सिंसियरली, सिग्नेचर, सिग्नेचर लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मोहन सिंह लिख सकते हो। ओके मैम। देखो कहीं हर जगह लेटर में थोड़ा सा हल्का वेरिएशन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है और छोटा छोटा ये के लिए मार्क्स वैसे नहीं कटता है। So now you understood letter for placing orders? यस मैम। Yeah, in the third paragraph you have to mention your terms and conditions. पहला paragraph में ये दे सकते हो कि your company has good reputation and so we are pleased to inform you that we want such and such items for the school and whatever, and then the table, and then where you want the delivery, when you want the delivery, you want the goods in proper shape, and what will be the mode of payment, वो सब details। फिर ये enquiry, enquiry मतलब as the word suggests जानकारी लेने के लिए। तो enquiry letter हम लोग क्यों लिखते हैं? कोई भी चीज का हमें जानकारी चाहिए तो ऑर्डर, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, थोक मात्रा में कोई सामान मंगाना है तो उसके लिए। और दूसरा जो टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर है वो राइटिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी as it comes in the category of formal letters।
Here is the entire structure, explain point by point. So letters, it is format is the same. उसमें भी था एड्रेस ऑफ द सेंडर, स्कूल का नाम, और सेंडर लाइब्रेरियन ब्लॉसम पब्लिक स्कूल, स्पोर्ट्स इंचार्ज सो एंड सो स्कूल, जैसे इट माइट इंक्लूड द फोन नंबर, माइट देखो लिख सकते हो, फोन नंबर ईमेल एड्रेस एसेंशियल नहीं है. आफ्टर एडिंग द एड्रेस लीव सम स्पेस एट द डेट. हाँ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, सेंडर्स एड्रेस के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, डेट लिखना है. फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर किस ये से जानकारी चाहिए. नाउ एड द सब्जेक्ट, कीप इट क्लियर एंड प्रिसाइज. सब्जेक्ट जो है एकदम छोटा होना चाहिए. क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर. To enquire about the spoken English class, to enquire about the room charges of the hotel, whatever is your subject. Subject is not very long, 4, 5, 6 words. Add salutation. Salutation मतलब sir, madam जो भी है, important part. Salutation से letter जो है polite लगता है. Salutation, sir, madam. Then comes the main body of the letter. Avoid writing long paragraphs. ये informal letter नहीं है कि दोस्त से बात कर रहे हैं, इधर उधर बाएं दाएं नहीं जाना है. Avoid writing long paragraphs. In formal letter, you have to keep in mind that बस अपना matter लिखना है. Avoid writing long paragraphs. Always bifurcate body into 3 or 4 paragraphs. 3 paragraph is enough, 4 का जरूरत भी नहीं है. Para 1, explain yourself. Also explain the reason behind writing a letter. तो पहला पैराग्राफ में तुमको रीजन लिखना है. I wish to enquire about the room charges and other details of your hotel. तो क्या तुम्हारा रीजन है लिखने का. फिर पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन द इंक्वायरी डिटेल्स. सारा इंक्वायरी डिटेल्स, किस किस चीज का तुमको इंक्वायरी चाहिए. पूरा मान लो कि कोई कोर्स का तुमको इंक्वायरी चाहिए, तो कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का फी क्या है, इंस्टीट्यूट में आने जाने के लिए कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है कि नहीं, वो कोर्स करने के बाद तुमको किस तरह का जॉब लग सकता है. तो फीस, ड्यूरेशन, prospects after doing the course and all those things. Demo class मिलेगा कि नहीं, तो सारा and all the details you have to give. Para 3 should be a closing one, asking for a response in gentle words. Para 3 में तुम request करोगे कि ये सब enquiry, ये सब details जो है वो जल्दी से जल्दी भेजें, मतलब polite रहना है. So kindly send the given details as early as possible. You have to be very, very polite in your letter, and by writing your name and designation. So these are the points. Then sample देखो. Park Lane, Kolkata, date February 25. ईयर नहीं मेंशन है, ईयर भी मेंशन कर देना. अब है रिसीवर्स एड्रेस, किसको लिखना है. मनीषा कुकवेयर, बर्तन के दुकान से इंक्वायरी करना है. मनीषा कुकवेयर दुकान का नाम है, जो कहाँ है, दिल्ली गेट में है, मेरठ. लिखने वाला जो है कोलकाता का है, और उसको इंक्वायरी कहाँ करना है, मेरठ के एक बर्तन के दुकान से उसको जानकारी चाहिए. See the subject, inquiry about exchange scheme. Exchange scheme निकलता है ना कि पुराना को दे के और नया लेना है, तो इसके लिए जानकारी चाहिए. Dear sir, I saw your advertisement in Amar Ujala today, where you have discussed regarding an exchange scheme. The scheme is regarding the exchange of old utensils with new non-sticky cookware.
सो एडवर्टीजमेंट तुमने देखा न्यूज़पेपर पे, तुमने मेंशन किया कि तुमको ये जानकारी इस एडवर्टीजमेंट से मिली, जिसमें कि ओल्ड यूटेंसिल्स को नए नॉन स्टिकी कुकवेयर से एक्सचेंज करना। आई हैव सम ओल्ड यूटेंसिल्स which I wanted to exchange against the one offered through the exchange scheme. तो इसमें तुमने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है? पर्पस, क्यों मैं ये लेटर लिख रही हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हो कि पर्पस है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, मेरे पास भी पुराना बर्तन है और मुझे एक्सचेंज करना है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ राइटिंग। I request you to kindly explain more about the scheme and its terms and conditions. So you are requesting him to explain the more details about the scheme. कि पुराने बर्तन का कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या terms and conditions. Also update me if there is a possibility of sending and receiving the items through parcel. और तुमने ये भी जानकारी मांगा है कि तुम पार्सल से भेज सकते हो कि नहीं, और फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी, या खुद जाके तुमको आइटम एक्सचेंज करना पड़ेगा। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली अर्जित गुप्ता। हेलो, सो इज इट क्लियर हाउ यू हैव टू राइट द लेटर ऑफ इंक्वायरी? यस मैम। पूजा करवाता है तुम्हारे घर में, मुझे पता नहीं, पूजा करवाता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। और भी है, कंप्लेंट लेटर है और लेटर टू एडिटर है, 4-5 तरह का है। तो कंप्लेंट लेटर में जो है वो कोई भी चीज का कंप्लेन करते हुए, एक तो दिए थे लेटर लिखने के लिए कि स्ट्रीट डॉग्स जो है इधर उधर घूमते हैं, उसके कारण जो है रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो वो एक कंप्लेंट लेटर हुआ। फिर लेटर टू एडिटर, यू आर ऑलरेडी अवेयर, यू आर रिटन इन क्लास 9 ऑल्सो। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, कुछ पूछना है? हेलो हेलो हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। और एक नया चीज तुम लोग का आया है, एनालिटिकल राइटिंग। बताए थे तुम लोग को एनालिटिकल राइटिंग, ग्राफ और या पाई चार्ट या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ या पाई चार्ट, ये सब को देख के और उस डाटा को इंटरप्रेट करना है कि ये ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, कौन सा ट्रेंड है, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो दैट इज analytical writing. So you write one question. Hello, can you hear me, all of you? I'll send all these materials on the WhatsApp group. इसको कहीं कॉपी करके रख लेना सैंपल के लिए। और Okay, ma'am. हम बोलना चाहते हैं, यहाँ देखो वेरिएशन है, हम भी कहीं कहीं से कॉपी ही किए हैं, खुद से नहीं। तो एक चीज है कि अभी जो नया फॉर्मेट जो आया है उसमें सर सब ऊपर होता है और सब्जेक्ट नीचे होता है, और डेट जो है वो रिसीवर्स एड्रेस के, ये सेंडर्स एड्रेस के नीचे है ना। तो ये दो चीज ध्यान रखना है। ऐसे सीबीएसई में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, हम लोग छोटे छोटे इसके लिए मार्क्स नहीं डिडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में हर जगह बहुत सारा वेरिएशन रहता है। तो you write one question. You are the lab in charge of, hello, can you hear me, all of you? Hello? Yes, ma'am. यस मैम। एक क्वेश्चन लिख लो। You are the laboratory in charge of
You are the laboratory in charge of Bluebells Public School. You are the laboratory in charge. Can you hear me, all of you? My voice is clear? Hello? Hello? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. You are the laboratory in charge of Bluebells Public School, Rukanpura. You are the laboratory in charge of Bluebells Public School, Rukanpura, Patna. As the academic session of your school is going to begin, you require, as the academic session of your school is going to begin, you require certain items for the lab. You require certain items for the lab. Write a letter to Sun Pharma. टू सन फार्मा दुकान का नाम है, न्यू दिल्ली. राइट अ लेटर टू सन फार्मा, न्यू दिल्ली, requesting the manager to send the items mentioned. Right? Hello, can you hear me? Hello? 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 Yes, Yes, ma'am. ma'am. So, write a letter to Sun Pharma, New Delhi, requesting the manager to send you the items mentioned. ये होमवर्क है तुम लोग का, ठीक है ना? मैम हाँ बोलो. मैम क्वेश्चन में आइटम्स दिया हुआ रहेगा या हमें खुद ही लेना पड़ेगा? नहीं, खुद ही तुमको लिखना पड़ेगा. और लैबोरेटरी इंचार्ज है तो लैब में किस किस तरह का चीज चाहिए, लिटमस ओके. पेपर और क्या क्या, तुम तो लोग तो जानते ही हो, लैब जाते होगे तो किस किस तरह का चीज, उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा. आइटम्स दिया नहीं रहेगा वो. ओके मैम. और कॉलम, प्रॉपर कॉलम में पहला सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ द आइटम्स जितना चाहिए, वो ब्रांड और वो सब जो है वो ऑप्शनल है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, इट्स ऑप्शनल. This is your homework. I will send all this sample and everything on the group. Lena. Okay. Any doubt? Anything you want to ask? Hello. तीन पोएम पढ़ाए, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो
tiger in the zoo, how to tell wild animals. सबको समझ में आया है या कुछ रिपीट भी करना है? हेलो, अगर कोई चीज रिपीट करना है तो बोल देना, फिर से पढ़ा देंगे, समझ में कुछ नहीं आया। ओके, पिंटू अटेंडेंस ले लेना। हेलो, पिंटू इज प्रेजेंट? हेलो पिंटू। आयुष तुम ही ले लो, कौन करेगा? आयुष क्लास 10D मॉनिटर, ओल्ड Yes, मॉनिटर, ma'am. अटेंडेंस ले लो। Okay, ma'am. ओके, मम्मी उसका लॉक नहीं खुल रहा है। खुलेगी? I'll send everything on the WhatsApp group and you write it in your copies so that you can revise during the examination. Is it clear? अभी थोड़ा Yes, सा ma'am. ये जो फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा ये था उसको ठीक कर देते हैं, उसके बाद भेजेंगे, ठीक है ना? लेकिन कॉपी में लिख लेना, एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में ठीक रहेगा। ओके, बाय ऑल। बाय मैम। नहीं खुला था। बोलिए, बताइए। पहले वाला क्या बोला था?